Hello 11th class political science students. Welcome back to our channel. We have done part 1 of NCERT solution for the chapter election and representation, and it is going to be the second part for the same chapter exercise. Already we have done 5 questions of the same chapter, and today we will start from question number 6. So let us start now. Question number 6 is asking from you which of the following statements are incorrect. आपको incorrect statement find out करनी है. Identify and correct them by substituting, adding or rearranging only one word or phrase. अब आपको क्या बोला गया है? आपको बोला गया है कि ये स्टेटमेंट ना कुछ इनकरेक्ट है. उनमें से आपको आइडेंटिफाई करनी है करेक्ट स्टेटमेंट और उसके बाद उसमें कुछ अरेंज करना है, रीअरेंज कर दो या तो उसको कुछ ऐड कर दो. ओके, कोई वर्ड या फ्रेज. अब देखो फर्स्ट, FPTP system is followed for all the elections in India. Have you studied it? Have you studied? क्या आपने पढ़ा कि FPTP सिस्टम पूरे के पूरे कंट्री के सारे इलेक्शंस के लिए यूज होता है? Of course not. Because we have studied now the election of president of our country, vice president of our country. Along with that, the member of Rajya Sabha are elected with the help of single transferable voting system. And that is the example of proportional representation. So we can't say that all of the election in our country are done with the help of FPTP system. Okay, so statement is incorrect. अब आप इसको correct करोगे, you will add some words, right? So FPTP system is only followed for election to panchayats, legislative assemblies and the Lok Sabha. सिर्फ पंचायत के इलेक्शन के लिए, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन के लिए और लोकसभा के इलेक्शन के लिए हम FPTP सिस्टम यूज करते हैं. गॉट इट? नाउ सेकंड इज इलेक्शन कमीशन डज नॉट सुपरवाइज पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शंस. तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, because we have studied in the chapter na, and we have studied twice or thrice that election commission does not supervise the election of panchayats, basically local self government word you can do, है ना. जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है उसके इलेक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन की नहीं होती. देयर इज अ सेपरेट बॉडी फॉर दैट, एंड व्हाट इज दैट? स्टेट इलेक्शन कमीशन. गॉट इट? सो दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली करेक्ट. ओके, अब उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट रिमूव एन इलेक्शन कमिश्नर. अब देखो ये वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. क्यों है? क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि अगर आपको इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना है, देखो पहले तो हमने टेन्योर पढ़ा था, 6 years और द एज ऑफ 65 years. I have told you what is the meaning of both of these terms together, right? उसके अलावा अगर प्रेसिडेंट को रिमूव करना है इलेक्शन कमिश्नर को, then he or she can do it, but condition is that it can be done with the recommendation of the parliament. Okay, so the correct statement will be President of India can remove an election commissioner on the recommendation of the both houses of the parliament. जब parliament के both of the houses consent देते हैं तभी जो हमारा इलेक्शन कमिश्नर होता है हम उसको रिमूव कर सकते हैं उसकी अथॉरिटी से. गॉट इट? एंड लास्ट इज appointment of more than one election commissioner in the election commission is mandatory. आपने mandatory वर्ड कहीं पढ़ा? हमने पढ़ा था ना, जस्ट टू डू मोर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर्स, है ना. वी हैव अडॉप्टेड दिस सिस्टम कि हमारे इलेक्शन कमीशन क्या होना चाहिए? मल्टी मेंबर बॉडी होनी चाहिए. बट हमने कहीं भी ये नहीं पढ़ा दैट इट वाज मैंडेटरी. मैंडेटरी का मतलब कि हर बार वो मल्टी मेंबर्स ही होना चाहिए, है ना. तो आपने ऐसा सिस्टम तो नहीं पढ़ा, बिकॉज बिफोर 1989 इट वाज वन मेंबर बॉडी ओनली, राइट. सो अब देखो क्या था. अपॉइंट It is incorrect because appointment of more than one election commissioner in the election commission is not mandatory, but it is an established practice through consensus of ensure accountability. यानी हमने अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करनी थी, इसीलिए हम इसको प्रैक्टिस में लेके आए हैं. बट ये ऐसा जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, कहीं भी मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये मल्टी मेंबर बॉडी होनी चाहिए. गॉट इट? आई होप अगर आप लोगों ने चैप्टर अच्छे से समझा होगा तो यू आर एबल टू आंसर ऑन बाय ऑन, राइट. अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम aims at ensuring representation of socially disadvantaged section. However, we are yet to have even 10% women members in our legislature.
अब देखो क्वेश्चन क्या है कि हमारा इलेक्शन सिस्टम बेसिकली क्या इंश्योर करता है कि डिसएडवांटेज सेक्शन की रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करता है, बट वहीं हम ऐसा भी सिस्टम शो करते हैं कि 10% भी हमारी क्या होती हैं, विमेन लेजिस्लेचर में इंक्लूड नहीं होती। सो व्हाट मेजर्स वुड यू सजेस्ट टू इम्प्रूव द सिचुएशन? आप इसके लिए क्या सजेशन दे सकते हो? अब देखो सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या सजेशन दिया था कि हमने जो 1/3 रिजर्वेशन दिया है दैट इज इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ओनली। तो सबसे पहले तो हम उसको क्या कर सकते हैं, वी कैन इम्प्लीमेंट इट इन द लोकसभा ऑल्सो ना। अगर देखो कंपल्शन होगा तो फिर फीमेल्स आएंगी ही आएंगी पॉलिटिक्स में। ओके, सो लेट अस डिस्कस विच ऑफ द मेजर्स विच वी कैन यूज फॉर इट। Proportional representation system of election would be better for ensuring proper representation of women in legislatures. अब देखो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कैसे बेनिफिशियल होगा, मान लिया फीमेल कैंडिडेट भी इलेक्शन फाइट करेंगी और मेल कैंडिडेट्स भी, तो फीमेल जितने परसेंट वोट सिक्योर करेंगी उतने परसेंट उनको पार्ट भी मिलेगा इन द लेजिस्लेचर। गॉट इट? सो दिस method can be slightly better in comparison of FPTP system just to ensure the participation of females in the legislature. Got it? मतलब क्योंकि इसके बाद क्या होगा कि फीमेल्स अपनी उस पोजीशन उस स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग लेजिस्लेचर में इंक्लूडेड होंगी जितने उन्होंने वोट्स गेन की। सेकंड, दिस विल इंश्योर द प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन अकॉर्डिंग टू देयर परसेंटेज इन द इंडियन पॉपुलेशन। क्योंकि देखो प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करेंगे, आप ये देखोगे ना पहले कि आपको कितने प्रोपोर्शन में आपको फीमेल्स कैंडिडेट्स बनानी है, उसी के अकॉर्डिंग फिर क्या होगा, वी विल गिव देम रिप्रेजेंटेशन, दैट्स व्हाई प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन मेथड कैन बी बेटर ऑप्शन। ओके, उसके अलावा द अदर मेथड इज टू इम्प्लीमेंट रिजर्वेशन फॉर विमेन कैंडिडेट इन इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। मतलब अब देखो पैट्रियार्कल माइंडसेट कहीं ना कहीं इसमें हर्डल क्रिएट करता है। कैसे? बिकॉज इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तो हमने क्या कर दिया, फीमेल्स के लिए 33% सीट रिजर्व कर दी, बट जब भी ये बिल कभी लोकसभा में जाता इट इज नॉट पास्ड। रीजन बिहाइंड इट द पैट्रियार्कल माइंडसेट ओनली ऑफ द पीपल, क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि फीमेल्स लॉ मेकिंग में पार्टिसिपेट करें। ओके, सो इफ वी आर एबल टू इंश्योर female reservation women reservation, so it will be beneficial and their representation will be increasing. Got it? D is the system of reservation should be rotated among all constituencies to ensure proper representation of women from all parts of the country. अब देखो कुछ जो डेवलप्ड कंट्रीज मतलब कुछ जो पार्ट हैं डेवलप्ड जो हमारे इंडिया के, वहां पर तो फीमेल्स का फिर भी कंट्रीब्यूशन हो जाता है ना। लेकिन कुछ ऐसे पार्ट हैं जहां पर फीमेल्स को इतने इंपॉर्टेंटली कंसीडर ही नहीं किया जाता, आज भी उनको सेकेंडरी कंसीडर किया जाता है। तो अगर हम सीट्स की प्रॉपर रोटेशन कर दें, हमने पढ़ा था ना रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी का एग्जांपल, तो अगर उस रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी एक तो रिजर्वेशन इंप्लीमेंट कर दे लोकसभा में भी, उसके अलावा वो जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी होंगी उनकी प्रॉपर रोटेशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रॉपर रोटेशन होगी तो इस सिस्टम का बेनिफिट मिलेगा डायरेक्टली टू द फीमेल्स। गॉट इट? सो ये सिस्टम हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम वी विल बी एबल टू इंश्योर women पार्टिसिपेशन इन द legislature of the country. Got it? Hope till 7th question everything is clear to all of you. अब उसके बाद 8th क्वेश्चन है, here are some wishes expressed in the conference to discuss the constitution for a new country. यहाँ पर ना कुछ wishes हैं जो express की गई थी कॉन्फ्रेंस में, for what? To discuss a constitution for a new country, मतलब newly independent country basically. Right, against each of these whether FPTP or proportional representation system is more suited to meet each of these wishes. मतलब कुछ wishes दी गई हैं, आपको उनमें से ये बताना है कि उसके लिए कौन सा सिस्टम बेनिफिशियल होगा, एफपीटीपी सिस्टम बेनिफिशियल होगा या फिर प्रोपोर्शनल सिस्टम ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ओके, रेडी? अब देखो फर्स्ट इज पीपल शुड क्लियरली नो देयर रिप्रेजेंटेटिव इज so that they can hold him or her personally accountable. अब देखो हमने क्या पढ़ा था, ये चीज हमने डायरेक्टली कहाँ स्टडी की थी, जब हमने पढ़ा था व्हाई डिड इंडिया अडॉप्ट एफपीटीपी सिस्टम। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री चाह रही थी कि हम डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर दें लोगों की, एंड जस्ट फॉर दैट वी हैव इंट्रोड्यूस्ड एफपीटीपी सिस्टम इन आवर कंट्री। तो अगर आप चाहते हो सिस्टम ऐसा बने जिसमें डायरेक्ट उस पर्सन की अकाउंटेबिलिटी हो जिसको आपने इलेक्ट किया, उस रिप्रेजेंटेटिव की, तो उसके लिए कौन सा सिस्टम बेनिफिशियल है, एफपीटीपी सिस्टम। क्योंकि
प्रोपोर्शन में तो लिस्ट सिस्टम होता है ना, तो वहां पे हो सकता है पूरी कंट्री एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड हो जाए, तो वहां पे एक पर्टिकुलर पर्सन आपके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा फॉर योर लोकेलिटी। गॉट इट? Second is, we have small linguistic minorities who are spread all over the country. We should ensure fair representation to them. अब देखो एक कंट्री के कुछ कुछ पार्ट में एक्सपेंडेड है, तो आपको उनको रिप्रेजेंटेशन देना है। सो व्हाट कैन वी डू? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, है ना? जितना रेशो उनका पॉपुलेशन में है, उतने रेशो में उनको सीट्स एलोकेट कर सकते हैं। गॉट इट? तो अगर आपको इस प्रोपोर्शन में सीट देनी है, तो आप क्या कर सकते हो? वी कैन यूज प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, राइट? Now, third is there should be no discrepancy between votes and seats for different parties. अब देखो इसके लिए अब देखो वोट्स और सीट के बीच में कौन आपकी क्या नहीं होनी चाहिए? डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या? कि जितनी वोट्स मिली उतनी सीट्स भी मिल जाएं। हमारे यहाँ क्या होता है एफपीटीपी सिस्टम में कि वोट्स कम मिल रही है और सीट्स ज्यादा मिल रही हैं। तो अगर ये हो कि सीट्स जितनी उतनी ही आपको मिले जितनी आपने वोट सिक्योर की, तो ये सिस्टम कौन सा होता है? दिस इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, राइट? And D is people should be able to elect a good candidate even if they do not like his or her political party. अब देखो ये बिल्कुल जब आप पॉलिटिकल पार्टी को फोकस करते हो तो कीप इन माइंड वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। और जब आप एफपीटीपी सिस्टम की बात करते हो तो इट मींस वी विल फोकस अ कैंडिडेट मोर इन कंपैरिजन ऑफ हिज और हर पॉलिटिकल पार्टी। समझ आया? तो डी ऑप्शन में आप कौन सा सिस्टम बताओगे बेस्ट होगा? दैट विल बी एफपीटीपी सिस्टम। गॉट इट? Hope this is also completely clear to all of you. So we are on question number 9. And what is the question saying to you? A former chief election commissioner joined a political party and contested elections. There are various views on this issue. One view is that a former election commissioner is an independent citizen and has a right to join any political party and to contest election. मतलब देखो क्वेश्चन में क्या है, कोई हमारी कंट्री के ना फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, मतलब जो रिटायर्ड हैं बेसिकली, उन्होंने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली और वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट भी कर लिया। अब इस इश्यू पे ना कुछ वेरियस व्यूज हैं, और वो व्यूज कैसे हैं? एक व्यू तो क्या है कि जो हमारी कंट्री के फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर हैं वो एक इंडिपेंडेंट सिटीजन है, राइट? और ही और शी इज हैविंग द राइट टू जॉइन एनी पॉलिटिकल पार्टी एंड टू कंटेस्ट इलेक्शन ऑल्सो बिकॉज वी हैव स्टडीड कि आपके पास सिर्फ राइट टू वोट नहीं है, आपके पास राइट टू बी इलेक्टेड भी है। एंड अकॉर्डिंग टू द अदर व्यू, living this possibility can often can affect the impartiality of the election commission. दूसरा व्यू क्या है? अब देखो दूसरा व्यू आपके दिमाग में क्या आ जाएगा कि अगर इलेक्शन कमिश्नर है तो हो सकता है किसी पार्टी को उसने फेवर किया होगा तभी उस पार्टी ने उसको सीट दी है। तो ये कहीं ना कहीं किस चीज को इम्पैक्ट कर सकता है? इट कैन इम्पैक्ट द इम्पार्शियलिटी ऑफ द इलेक्शन कमिशन ऑफ आवर कंट्री। Okay, so former election commissioner must not be allowed to contest any elections. इसलिए उसके पास अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए कि वो इलेक्शन कंटेस्ट करे। So which position do you agree with and why? आप कौन सी पोजीशन के साथ अग्री करोगे और क्यों अग्री करोगे? ओके अब देखो, आप खुद सोच के देखो, फॉर बीइंग एन इंडिविजुअल वी आर हैविंग द राइट ना। ओके सो एनी अब देखो इसमें क्या करोगे? The election commissioner should not contest election after they leave office. अब देखो अगर आप इसमें देखोगे तो क्या हो सकता है? उनको इलेक्शन नहीं करवाने चाहिए, नहीं लड़ने चाहिए। क्यों? दिस इज बिकॉज द इलेक्शन कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दैट रिक्वायर्स द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ इंटीग्रिटी टू इंश्योर इम्पार्शियलिटी इन इट्स कंडक्ट। और इसीलिए इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंटीग्रिटी इंश्योर करके रखे, क्योंकि ये हाईएस्ट अथॉरिटी है, right? The task of the election commissioner is so impartially supervise and safeguard the conduct of election and not become a part of electoral process. ये क्या हो सकता है कि हमारा जो क्या है, हमारा जो सिस्टम है इलेक्शन कमीशन का, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो इलेक्शन प्रोसेस अच्छे से कराए, फेयर वे में करवाए, उसको सेफ गार्ड करके रखे, ना कि खुद इलेक्टोरल प्रोसेस का पार्ट बन जाए, राइट? Any future prospect of the involvement of the statutory official like the election commission in the electoral politics would seriously compromise the integrity and impartiality of the one institution that is the cornerstone of democratic convention in the country. और कुछ क्या हो सकते हैं? अगर आप ऐसी ही हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, अगर आप उनको कहीं ना कहीं ऐसी अथोराइज कर दो कि वो पार्टिसिपेट करें, तो ये क्या करेंगे?
कहीं ना कहीं हमारी डेमोक्रेटिक कन्वेंशन जो है ना, उनको इम्बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, राइट? And this practice would set a precedent that would erode and credibility of the election commission and render it liable to charges of bias in its conduct of elections. और क्या हो सकता है कि वो अपने इलेक्शंस जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे भी कहीं ना कहीं बायस्ड हो सकते हैं, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू कि जो सेकंड ओपिनियन आपके माइंड में जाएगा वो यही जाएगा ना, किसने किसी पर्टिकुलर पार्टी को ना फेवर किया होगा, तभी तो उस पार्टी ने इसको टिकट दी है, यही जाएगा ना हमारे दिमाग में। तो ऐसे में क्या हो सकता है, जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स हो सकते हैं ना, बेसिकली हमारे इलेक्शन कमिश्नर क्या कर सकते हैं, दे कैन ट्राई टू मेक अ लिंक विद एनी मेजर पॉलिटिकल पार्टी so that after the retirement of their tenure they can easily join the political party. तो कहीं ना कहीं जो हम जितना इम्पार्शियल बनाने की कोशिश करते हैं ना, हमारे इलेक्शन कमीशन को जितना ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश करते हैं, अगर वो मेंबर भी पॉलिटिक्स में आ जाए तो हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन? समझ रहे हो? उसके बाद such a situation would be unhealthy for our polity in the long term as it would be exposed to electoral malpractices at the highest level, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा चांसेस होंगे मेल प्रैक्टिसेस होने के, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज हमने देखो इसीलिए इसको इंडिपेंडेंट रखा है, सो दैट इट कुड नॉट बिकम द टॉय इन द हैंड ऑफ द रूलिंग पार्टी। बट अगर ये खुद जाके पार्टीज को ज्वाइन करेंगे तो ऑफ कोर्स मेल प्रैक्टिसेस इंक्रीज होंगी। This precedent would constitute a real danger of reducing elections to a symbolic exercise that would be hostage to the temptation of office for the election commissioner and the future date. ये कहीं ना कहीं जो हमारी इमेज है इलेक्शन की, वो एक्सरसाइज है जो हम इतने ट्रस्ट के साथ करते हैं, है ना, जो उसकी हॉलीनेस है, उसकी हॉस्टेज है, उसको कहीं ना कहीं क्या करेगा, उस पर्टिकुलर पोजीशन को हैम्पर करेगा, राइट? अब देखो इसका एग्जाम्पल मैं आपको और भी बताती हूँ। जो हमारी कंट्री में जुडिशरी होती है ना, बेसिकली जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, जब वो अपनी पोस्ट से रिटायर हो जाते हैं, जब उनका टेन्योर पूरा हो जाता है, तो बेसिकली क्या किया जाता है कि उनकी जो वकालत की प्रैक्टिस होती है ना, जो लॉ की प्रैक्टिस होती है, उसको प्रोहिबिट कर दिया जाता है। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? द रीजन बिहाइंड दैट कि अगर वो अपनी पोस्ट से रिटायर होने के बाद भी उस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखते हैं, तो ये हमारे जुडिशियल सिस्टम को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर सकता है, क्योंकि वो रिटायर हुए, वो हमारे रिटायर हुए किससे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अथॉरिटी से। तो क्या होगा, कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने उसके उनके साथ वर्क किया होगा, तो वो क्या समझ सकते हैं कि ये हमारे सीनियर हैं, तो वो उनके आगे अपने हो सकता है उतने वे में खुद को एक्सप्रेस ही ना कर पाए। उसके अलावा और क्या हो सकता है, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हो सकती हैं, दे कैन ऑल्सो ट्राई टू टेक एडवांटेज। इसीलिए हमने क्या किया है, इसीलिए वी हैव डन दैट काइंड ऑफ प्रोविजंस इन द जुडिशरी बेसिकली। तो अगर इलेक्शन कमीशन कुछ ऐसा वर्क करना शुरू कर दे कि इलेक्शन कमीशन ही पॉलिटिक्स में एंट्री करना शुरू कर दे, तो डेफिनेटली इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर द कंट्री। गॉट इट? सो होप ninth question is completely clear to you. Basically this suggestion is given to make the transparency, make the accountability of the election commission of our country, so that people can have complete trust in this particular commission. Okay, last question is, Indian democracy is now ready to shift from a crude first past to post system to a system of proportional representation. डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? क्या आप इस स्टेटमेंट के साथ अग्री करते हो कि हमें फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए? गिव योर रीजंस फॉर और अगेंस्ट दिस स्टेटमेंट। आपको या तो फेवर में स्टेटमेंट देनी है या अगेंस्ट में स्टेटमेंट देनी है। अब देखो इसमें आप क्या दे सकते हो, इंडियन डेमोक्रेसी इज नॉट येट रेडी टू रिप्लेस द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। हम रेडी नहीं हैं। क्यों? This is because proportional representation system is more suitable for political parties rather than social groups. क्योंकि हमारा क्या है, जो पॉलिटिकल जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, वो पॉलिटिकल पार्टी के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है, ना कि सोशल ग्रुप के। इंडियन सोसाइटी ऑलरेडी हैज लार्ज नंबर ऑफ सोशल ग्रुप्स, और हमारे यहाँ तो ऑलरेडी लार्ज नंबर ऑफ सोशल ग्रुप्स बने हुए हैं। So proportional representation would lead to a rise in conflicting demands between these social groups to maintain it.
और क्या कर सकते हैं, अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हम लोग इंश्योर करें तो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट्स अराइज करेगा जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं। और क्या इंश्योर कर सकता है कि कुछ एक पर्टिकुलर सोशल ग्रुप है जो अपना डोमिनेंट कहीं ना कहीं एस्टेब्लिश कर रहे हैं और वही अपनी पावर को एक्सरसाइज करेंगे, राइट, एंड दे कैन क्रिएट न्यू सोशल अलायंसेस आल्सो टू मेंटेन इट। And it is also debatable whether language, religion, caste, ethnicity should be the decisive factor in proportional representation, as this would give rise to narrow sectional interest and endanger the social fabric in the country. और देखो प्रोपोर्शन में आपने क्या पढ़ा कि जितनी आपकी पोजीशन होगी ना सोसाइटी में, उस प्रोपोर्शन में आपके लिए सीट्स कहीं ना कहीं बेसिकली क्या हो जाती है, उस प्रोपोर्शन में आपके लिए सीट्स डिवाइड होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है इन द प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। बट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम इसको उतने बेनिफिशियल वे में नहीं कंसीडर कर सकते हैं, राइट? ऐसा नहीं कि हमने इसको अडॉप्ट ही नहीं किया। इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट वी हैव अडॉप्टेड इट, इन द इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा वी हैव इलेक्टेड इट, वी हैव अडॉप्टेड इट। बट अगर आप पूरी कंट्री के लिए, लेजिस्लेचर के लिए इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाओगे, इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम ओनली। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, रिलीजन, कास्ट, एथनिसिटी। तो अगर उसमें हमने प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन ऐड कर दिया तो इसकी वजह से क्या होगा, जो सेपरेट सेपरेट सेक्शनल इंटरेस्ट है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ग्रो हो जाएंगे और जो अपने आप में नैरो हैं, एंड इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिडक्शन, और इट विल क्रिएट अ डेंजर फॉर द सोशल फैब्रिक ऑफ आवर कंट्री। जो हमारी यूनिटी है ना, वो कहीं ना कहीं प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन से एंडेंजर हो जाएगी, right? So proportional representation can be adopted in due course of time with the maturing of Indian democracy. तो अभी के लिए हम उतने मेच्योर नहीं हैं, because in today's time also we have seen ना that people cast their vote on the name of their caste, on the name of their religion, on the name of their gender and social structure and so on. तो आज अगर आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस करवाते हो तो कहीं ना कहीं ये नेशनल यूनिटी को ही डेंजर क्रिएट करेगी। And that's why if we want to save our national unity, then this particular system which we are already having, that is FPTP system, that is more beneficial, that is more suitable according to the social structure and according to the situation and position of India. Got it? So hope, although you can add your own answer also, because in political science basically why do we study this subject, because it makes you more rational, right? And that's why to मेक यू मोर रैशनल यू कैन ऐड योर ओन पर्सपेक्टिव ऑल्सो। जैसे आप लोगों ने ये सिस्टम पढ़ा तो आप बोल सकते हो कि हम एफपीटीपी सिस्टम से शिफ्ट हो सकते हैं, बट यू विल हैव टू प्रोवाइड योर लॉजिकल आंसर्स फॉर दैट, राइट? इन द सेम सिस्टम जब आप इलेक्शन कमीशन की बात करते हो तो आप उस स्टेटमेंट के साथ भी जा सकते हो, बिकॉज द इलेक्शन कमिश्नर इज एन इंडिपेंडेंट सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, तो उसके पास भी राइट होना चाहिए। Got it? So, according to your understanding, you can add your own answers also. These are not, you can say, these are not final, because in political science everything that is rational that can be correct, and that is the beauty of this particular subject. Okay, so try to enhance the thinking capacity of your brain. Okay, so that you can, so that the thinking capacity of your mind can be more broader and you can think on more rational basis. So hope this complete chapter along with the exercise part is completely clear to all of you. From next video, we will start next chapter. Till then, keep learning, stay connected. Thank you. Thanks a lot. Bye bye and take care.